Morning to all of you. This is Neha, your course teacher, which is Weed Management, and your course number is Agro 5212. Okay. So today we will discuss about our fourth practical exercise, which is to study about the method of the herbicide application and some स्प्रेइंग इक्विपमेंट्स. ठीक है. सो ये हमारा फोर्थ एक्सरसाइज है. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंप्लेन होता है कि राइटिंग समझ नहीं आ रही है मैडम, या फिर कैसा उसको लिखना है. ठीक है. तो मैं इस वजह से ये लेक्चर आपका लेक्चर वीडियो बना रही हूँ. सो पहले हम देखेंगे मेथड ऑफ हर्बिसाइडल एप्लीकेशन एंड नेसेसरी प्रिकॉशन. ठीक है. सो मेथड ऑफ द हर्बिसाइड एप्लीकेशन हमने ऑलरेडी अपने थ्योरी के क्लास में पढ़ चुका है. फिर भी हम एक बार फटाफट से ब्रीफ स्टडी कर लेते हैं. So efficient and efficient weed control depend on the selection of the proper method of the application. So herbicides are applied to the soil. So soil applied herbicide कहते हैं उसको, herbicide application, and the foliar, so foliar application depending on the properties of the herbicides. ठीक है. So वो property पे depend करता है कि which kind of herbicides. ठीक है. एंड देन मोड ऑफ द एक्शन एंड सेलेक्टिविटी. दैन एनवायरमेंटल फैक्टर, कन्वीनियंस एंड कॉस्ट आर द अदर फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ करेक्ट मेथड ऑफ द एप्लीकेशन. एंड प्रॉपर मेथड ऑफ द एप्लीकेशन कैन result in poor weed control and or severe crop injury. Okay, so these are the some basic concept of the method of the application. What kind of method of the application? The herbicidal application can be grouped in following way, which is on the basis of the time of the application, जो हमने अपने theory class में देखा है. Pre planting incorporation, pre emergence, post emergence, and the lay by application. Okay, so you all are very much aware for this all terms and what kind of application they are. Then the second one is on the basis of the method of the application also. So first one is the time of the application and then method of the application, which is foliar. In that foliar, under blanket application, then direct application, protect application, and spot treatment. Then second one is soil application, is the second method of the application, in which surface application, subsurface application, band application, and soil fumigation under comes in this category. Okay, so the choice of a method of to be grateful for near weed control depends upon the nature and properties of the herbicides and the characteristics of target plants. Herbicides in natural states may be solid or liquid, volatile or non-volatile, soluble or non-soluble. Okay, so ये सारी चीज़ें आपने थ्योरी क्लास में पढ़ा है. सिर्फ राइटिंग इशू होने की वजह से मैं इसे एक बार रीड आउट करती हूँ. Okay, then herbicides can formulated in the soluble powder, wettable powder, or in emulsifiable forms to increase the biological effectiveness of herbicide adjuvants are added. Okay, so we all know that what is adjuvant. Then these adjuvants modify the physical properties of herbicide and make it fit for easy application, long storage, and biological effective. Okay, so there are some precautions to be taken while handling herbicides. Okay, so first one is read the label on the each container before using the contains and strictly follow the instructions therein. ठीक है. जब भी हम जब फील्ड पे हमें जब ट्रीटमेंट करना होता है तो हमें पहले बॉटल देखना पड़ता है कि क्या है, एक्सपायरी डेट तो नहीं हो गया है, या कैसे किस मोड ऑफ दी किस मोड ऑफ दी साइट का वो फॉर्मुलेशन है उस पर्टिकुलर हर्बिसाइड्स का. सो डिस्ट्रॉय द एम्प्टी container by buying them at least 18 inches deep in an isolated area away from the water resources. ठीक है. These are the first precaution. Then apply the herbicides only at the time specified on the label. It is very necessary to observe the recommended intervals between treatment and pasturing harvesting of the crop. ठीक है. तो ये सारे प्रिकॉशंस हैं. तो कई बार क्या होता है कि थ्योरी के एग्ज़ाम में थ्योरी में भी पूछ लिया जाता है कि बेसिक जो हर्बिसाइड्स हैंडलिंग के प्रिकॉशन क्या है. इस वजह से मैंने प्रैक्टिकल में से डिटेल से आप लोगों को लिखवा दिया है ताकि जब थ्योरी पे आए तो ये आप आसानी से आंसर कर सकें. ओके,
So always consult the product label or technical bulletin before applying the chemical. Then wear goggles, rubber gloves and other clothing as recommended on the label. ठीक है, तो लेबल में सारे प्रिकॉशन मेजर्स ऑलरेडी मेंशन होते हैं. ठीक है, तो उसे हमें केयरफुली रीड आउट करना होता है कि क्या क्या है, किस फॉर्मुलेशन का है, ड्यू डेट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है. तो ये सारी डिटेल्स जो होते हैं वो कंटेनर में मेंशन होते हैं. ठीक है, तो हमें वो सारी चीज़ें अवेयरनेसली स्टडी करनी चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए या देखना चाहिए केयरफुली. देन गार्ड अगेंस्ट पॉसिबल इंजुरी टू नियर बाय द susceptible plants. The herbicide should be kept in a safe place away from sheet fertilizers, edible grains, cattle feed, etc., where children and unauthorized persons do not have access. Then the herbicide should never be stored on the farm and should be used just after the purchases. Never use the herbicides from unlabeled containers or kept in such a container whose instructions have been mutilated. ओके, सो हमें जब भी हर्बिसाइड का एप्लीकेशन करना होता है तो सारे प्रिकॉशन मेजर्स जो उसमें रेकमेंड किया हुआ होता है किस, ठीक है, क्योंकि टॉक्सिसिटी से हमें बचना होता है. तो छोटे बच्चों से या अनऑथराइज जो पर्सन है, ठीक है, उनसे बचाना होता है. वाटर रिसोर्सेज से दूर रखने होते हैं, या कैटल फीड है, ठीक है, या जो हमारे बहुत सेंसिटिव ससेप्टिबल जो प्लांट्स हैं तो उनसे काफ़ी दूर रखना होता है. देन प्रिकॉशन टू टेकिंग ड्यूरिंग प्रेपरेशन ऑफ द सोल्यूशन. ठीक है, तो जब भी हम प्रेपरेशन करते हैं, फॉर्मुलेशन करते हैं सोल्यूशन का, तो हमें क्या क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए. सो लेट अस सी. रीड द अवेलेबल लिटरेचर ऑन और विद द कंटेनर्स एंड अकॉर्डिंगली ऑलवेज मेक द सॉल्यूशन इन ग्लास और प्लास्टिक कंटेनर्स. ठीक है, तो हमेशा ग्लास या प्लास्टिक, ये सबसे मेजर प्रिकॉशन है, क्योंकि क्या होता है स्टील या फिर अदर आयरन के कंटेनर में जब हम इसका मिक्सचर तैयार करते हैं तो वो उसके मॉलिक्यूल से रिएक्शन हो जाता है. ठीक है, वो उसके मॉलिक्यूल से बाइंड अप होकर रिएक्ट कर देता है. फिर उसका जो भी जो उसका कोर नेचर होता है, जो उसका कोर कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, वो चेंज हो जाता है. ओके, सो हमेशा ऑलवेज मेक द सोल्यूशन इन ग्लास और प्लास्टिक कंटेनर. ओके, the quantity of the solution should be fixed according to efficiency of a sprayer used for the purpose. Add soap emulsion or other adhesive substance to increase the viscosity of the spray material. ठीक है, तो कोई ऐसे एडेसिव सब्सटेंसेस कहने का मतलब ये है कि फॉर्मुलेशन में आप एडजुवेंट मिक्सअप कर सकते हैं ताकि आप उसके इफेक्टिवनेस को, हर्बिसाइड के इफेक्टिवनेस को इंक्रीज कर सकें, उसके विस्कोसिटी को इंक्रीज कर सकें. Okay, so care should be taken that during preparation the solution, no part of the body may have direct contact with herbicides. During this period, the person using herbicides should wear goggles, rubber gloves and masks and अडॉप्ट अदर प्रोटेक्टिव मेजर्स. ठीक है, तो ये ग्लोव्स हैं, गॉगल्स हैं. जनरली आप देखेंगे फार्मर्स जो हैं ये नहीं ये नहीं यूज़ करते, पर अगर हम देखें, अगर हम टेक्निकली देखें तो ये सारी चीज़ों में अवेयरनेस हमें होना चाहिए, फार्मर्स को अवेयरनेस हमें लाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो हर्बिसाइड्स होते हैं वो स्किन को बहुत हार्म करते हैं. आप देखेंगे कि बहुत केसेस ऐसे होते हैं जो किसी टॉक्सिसिटी की वजह से हमें स्किन कैंसर जैसी बीमारी कॉज करते हैं, इज़न्ट इट. तो ये सारे जो क्लोथिंग है आपकी, जो ग्लव्स वगैरह हैं, आई गॉगल्स हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको यूज़ में लाना चाहिए. सो ऑलवेज हैव बीन सोप एंड फ्रेश वाटर इन द प्लेस ऑफ द प्रिपरिंग सोल्यूशन. ठीक है, तो आपको अकॉर्डिंग टू योर रिकमेंडेशन आपके पास वहाँ पे सोप होने चाहिए जिससे आप अपने हैंड क्लीन कर सकें, आप अपने फेस वॉश कर सकें. ठीक है, तो ये जो है बेसिक प्रिकॉशन है हमारे हर्बिसाइड्स को अप्लाई, जो हर्बिसाइड फॉर सोल्यूशन जब हम प्रिपरेशन करते हैं या हर्बिसाइड जब हम हैंडलिंग करते हैं, ठीक है, जब हम उसे देखते हैं कि हमें ये ट्रीटमेंट इस फील्ड पे देना है, तो ये सारे बेसिक प्रिकॉशन लेना चाहिए. देन नेसेसरी प्रिकॉशन ड्यूरिंग वी यूज़. ठीक है, तो दीज आर द ऑल को रिलेटेड सेम है. सो एक्ट एज प्रीमियम इंस्ट्रक्शन ऑन द लेबल. जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं लेवल पे वो हमें देखना चाहिए. ठीक है, कि कितनी मात्रा में, कितने इसी में सोल्यूशन, इमल्सिफाइड सोल्यूशन हमें तैयार करना है, कितनी मात्रा में वाटर वाटर मिक्सअप करना है, कितना ml वाटर होना चाहिए, कितना कंसनट्रेशन होना चाहिए उस पर्टिकुलर हर्बिसाइड का. तो ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करना होता है. Then never try to identify the herbicides by feel or smell. Stop spraying operations at high wind speed, intense heat and when rain is just expected. ठीक है, तो इन सारी कंडीशन पे हमें
जब रैनिंग होने वाली हो, ठीक है, या विंड वेलोसिटी काफ़ी हाई हो, हवा का बहाव उस दिशा में हो, तो काफ़ी प्रिकॉशन मेज़र लेने चाहिए। हमें उस हर्बिसाइड का एप्लीकेशन उस टाइम पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो फिर वो डायरेक्ट इफेक्ट हमारे नोज़ पे, हमारे फेसेस पे पड़ता है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। जब विंड वेलोसिटी होती है, काफ़ी हाई विंड होते हैं, तो जितना मात्रा में हमारे प्लांट को मिलना होता है वो नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो ये सारे जो डिसएडवांटेज हमें देखने को मिलते हैं अगर हम प्रिकॉशन मेजर्स नहीं अपनाते हैं तो। देन नेवर ट्राई टू ब्लॉक क्लॉग नोजल बाय माउथ प्रेशर। देन नेवर, जब भी क्लॉग्ड होता है, नोजल जो होते हैं काफ़ी टाइटली रबर जो होते हैं फॉर्म होते हैं, काफ़ी टाइटली होते हैं, तो हम जनरली हमसे कब कुछ खुलता नहीं है, कोई बॉटल के कैप वगैरह नहीं खुलते हैं हम, तो हमें माउथ का यूज़ कर लिया, तो जनरली ये प्रेशर माउथ से यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है, कभी भी। देन नेवर वर्क अलोन विथ हैंडलिंग द हर्बिसाइड एज वेल एज देयर एप्लीकेशन। क्लीन द वॉश स्प्रेयर्स केयरफुली बिफोर एंड आफ्टर यूज। डू नॉट ईट, ड्रिंक, स्मोक or rub your eyes with hand during spray. So these are all the basic precautions which are we are apply in our field also. Then avoid sprays reaching the nearby water bodies, जो water resources होते हैं, canals होते हैं, ठीक है, तो उन सारे resources से हमें जो ये spray जो होता है उसको दूर रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे water resources होते हैं जहाँ animals जो हैं वो पानी पीने के लिए आते हैं, हम बहुत सारे डोमेस्टिक यूज़ के लिए हम वाटर का यूज़ करते हैं। सो ये सारी चीज़ों से हमें प्रिकॉशन मेजर्स अपनाने चाहिए। Then after, reasons for the phytotoxicity symptom of herbicide on crops. So all recommended herbicides are very safe and respective crop in which they are recommended, provided they are used according to the recommended technology. Then even recommended herbicide may show phytotoxicity symptom under certain situations such as, first one is wrong time of application, ठीक है, हम टाइमिंग सही टाइमिंग पे एप्लीकेशन नहीं होते, so some phytotoxicity effects should be occur in this condition. So application of the herbicide too early than in recommended time may cause yellowing and necrosis of the crop. Application of the 2,4-D on very young crop may cause tubular leaves and deform wheat ears also, ठीक है। तो जो 2,4-D herbicide है वो काफ़ी कंसनट्रेटेड और काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग herbicide है, काफ़ी टॉक्सिक इफेक्ट दिखाता है, क्योंकि जनरली हम उसे ब्रॉड लीव्स वीट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, जो डीप रूटेड होते हैं, ब्रॉड लीव्स जिनके होते हैं वो इसके लिए यूज़ करते हैं, तो वो काफ़ी सरफेस एरिया को काफ़ी कवर करने की एक्शन होता है उनका, साइट ऑफ दी एक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, तो वो डिफॉर्म कर देता है आपके लीव सरफेस को, ठीक है। तो इस टाइप का जो एडवर्स इफेक्ट जो है हमारे क्रॉप पे दिखाता है, तो ये टाइम ऑफ दी एप्लीकेशन देखना चाहिए कि भाई आपका जो मैच्योर नहीं हुआ है अच्छे से प्लांट, और आप ज़्यादा कंसंट्रेशन सोल्यूशन रेडी करके अगर वीट को ख़त्म करने के लिए कर रहे हैं तो एज वेल एज आपका क्रॉप भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे प्रिकॉशन मेजर्स हमें ध्यान में रखने चाहिए। देन यूज़ ऑफ दी ओवर डोजेस। सो एप्लीकेशन ऑफ दी हायर देन रिकमेंडेड डोजेस इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्टनिंग, yellowing and necrotic growth of the crop. Then adopting of wrong application technology. So improper application of the herbicide not only harm the percent crop but may also prove harmful for succeeding crops due to residual toxicity. Then spray drift due to the speedy winds on the day of spray, adjoining crop may be damaged. So these are the all adverse effect of herbicides if we should not apply precaution measures also. So ये सारी जो एडवर्स इफेक्ट है रॉन्ग टाइम ऑफ द एप्लीकेशन, तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं हमारे क्रॉप पे वो दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। सो एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस जब होती हैं, रेनिंग होती है, ठीक है, इमीडिएटली आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द हर्बिसाइड लिटिल क्रॉप रूट अपटेक ऑफ द हर्बिसाइड में इवन डैमेज द टॉलरेंट क्रॉप, ठीक है। तो जब रेनिंग हो गई तो फर्स्ट तो ये होता है कि सारे रेन्स के रेनफॉल की वजह से सारे जो आपके हर्बिसाइड्स होंगे वो क्या होंगे, वहाँ पे नहीं होल्ड आउट नहीं हो पाएंगे, ठीक है, होल्ड इन नहीं हो पाएंगे। तो इन सारी चीज़ों की वजह से आपके हर्बिसाइड्स का एक तो कॉस्ट लॉस होगा कि आपने स्प्रे किया, तो आपको वेदर को ध्यान में रख के हर्बिसाइड का एप्लीकेशन करना चाहिए। Then due to the wrong adoption to recommended technology with the use of the unapproved herbicide, crop is damaged. For instance, wheat crop
Okay, so maybe damage with use of the metribuzine as pre-emergence but crop remain unaffected. तो ये जो एडॉप्टेशन है, ठीक है, जो टेक्नोलॉजी का बेसिकली हम जो एडॉप्टेशन कर रहे हैं, तो ये सारे एडॉप्टेशन का हमें ध्यान रखना चाहिए. तो दीज ऑल आर द बेसिक प्रिकॉशंस फॉर हैंडलिंग हर्बिसाइड, फॉर स्प्रेइंग हर्बिसाइड्स, okay, and for formulation solution, for ready to formulations of herbicide solution. ठीक है, so these are the precaution measures. Then we have spraying equipment. ठीक है, so select the spraying equipment according to the required discharge as well as droplet size, as the efficiency of applied herbicide depends upon this parameter. So types of the sprayer हम देखेंगे, depending on the type of the force required sprayer are divided into 4 groups or 4 category. So first one is manually जो operated होता है, then compressed air sprayer होता है, then hydraulic sprayer होता है, and then power sprayer होता है. ठीक है, सो फर्स्ट वन इज अ कॉम्प्रेस्ड एयर स्प्रेयर. ठीक है, जिसको हम प्री न्यूमेटिक स्प्रेयर भी कहते हैं. ओके, सो ये डोमेस्टिक स्प्रेयर है बेसिकली, इसमें डोमेस्टिक स्प्रेयर आते हैं. सो दीज आर ओनली यूज टू स्प्रे अगेंस्ट फ्लाइज एंड मॉस्किटो को जो हम ख़त्म करने के लिए, डोमेस्टिक यूज़ के लिए जो हम स्प्रे यूज़ करते हैं. सो एंड देन हैंड कंप्रेसिंग स्प्रेयर, सो मोस्ट कॉमन इन नैपसेक स्प्रेयर. ठीक है, जो हम जनरली हमारे जो फार्मर्स होते हैं बहुत ही यूज़ करते हैं नैपसेक स्प्रेयर का. तो दिस इज पंप स्प्रेयर. दिस पंप इज़ वेरी आइडियल एंड इकोनॉमिकल फॉर स्प्रेइंग पेस्टिसाइड इंक्लूडिंग हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड एंड फंगिसाइड एक्सेट्रा. देन प्रेशर रिटेनिंग और बैटरी स्प्रेयर. ठीक है, जो बैटरी से चलते हैं. सो प्रेशर इज मेंटेन थ्रू आउट द स्प्रेइंग टाइम. and hydraulic sprayer. Okay, so second one is hydraulic sprayer. Okay, so pedal pump sprayer. ठीक है, जिसको फुट स्प्रेयर भी कहते हैं, जो कि हम पैडल लगे होते हैं उसमें. ठीक है, जो साइकिल पे पैडल लगे होते हैं, वैसा कि एक जो फार्मर होता है, एक बंदा होता है, वो पैडल को जो घुमाता रहता है, साइकिलिंग करते रहता है और वो स्प्रे होते रहता है herbicide. Okay, so this pump is not suitable for spraying herbicides. It can be used for spraying insecticides and fungicides, especially in orchard and plantation. ठीक है, तो ये herbicide के स्प्रे करने के लिए जनरली यूज़ नहीं किया जाता. This is for the insecticides and fungicides. Okay, for orchard and plantation crops होते हैं, जो लाइन टू लाइन सोइंग होती है ना, जो प्रॉपर डिस्टेंस पे मेंटेन करके जो शोइंग होती है. तो बेसिकली हम जो पैडल पंप स्प्रेयर है उसका यूज़ उसी में करते हैं. Okay, then power operated sprayer. So in this sprayer, pressure is generated mechanically with diesel or petrol engines with varying HP, जिसका अलग अलग हॉर्स पावर होता है. ठीक है, जो मैकेनिकली डीजल या पेट्रोल इंजन होते हैं, एक पर्टिकुलर हॉर्स पावर के इंजन होते हैं. एंड दिस कंसिस्ट ऑफ द पावर जनरेटिंग पम्प, सक्शन चैम्बर, डिलीवरी एज वेल एज डिस्चार्ज लाइन एक्सेट्रा. द स्प्रे फ्लूइड इज ब्लोन आउट बाय मीन्स ऑफ एन इंटेंसिव एयर करेंट जनरेटेड बाय ब्लोअर. ठीक है, सो ये जो भी होता है, सक्शन पंप लगा होता है. ठीक है, एक सक्शन पंप लगा होता है जो शक करता है, प्रेशर क्रिएट करता है और जो भी हर्बिसाइड्स होता है उसको डिस्चार्ज करता है. ठीक है, सो ये काम करते हैं. देन द स्प्रे लिक्विड ब्लाउन थ्रू PVC ट्यूब एंड रिच द नोजल वेयर द स्पीडी एयर फ्रॉम ब्लोअर ब्लास्ट. एक ब्लोअर लगा होता है. ठीक है, जो एक पंप साइड में ब्लोअर क्यों लगा होता है, प्रेशर क्रिएट करता है, उस प्रेशर को मेंटेन या बैलेंस करने के लिए एक ब्लोअर लगे. जैसे हमारे AC वगैरह में जो ब्लोअर लगा होता है वो क्या करता है, गर्म हवा को खींच के बाहर पे, तो वो क्या करता है, एयर बैलेंस करता है. ओके, सो ऐसा ब्लोअर लगा होता है. देन ब्लास्ट द लिक्विड इनटू द स्मॉल ड्रॉपलेट्स, जो कि क्या करता है, प्रेशर को मेंटेन करता है, जिसको वो फिर क्या करता है, लिक्विड को ड्रॉपलेट्स में चेंज करके स्प्रे करते हैं हम उसका. ओके, सो विच कैन बी मेजर्ड इन द माइक्रोन. द कैपेसिटी ऑफ दिस पावर स्प्रेयर्स मे वेरी फ्रॉम 15 लीटर्स टू मोर देन 500 लीटर्स. ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. 15 लीटर्स टू 500 लीटर की कैपेसिटी होती है पावर ऑपरेटेड स्प्रेयर की. ठीक है, सो दीज आर द वेरी आइडियल इक्विपमेंट फॉर स्प्रेइंग फोलियर अपटेक हर्बिसाइड्स. सो दे आर सम पार्ट्स ऑफ द नैपसेक स्प्रेयर. ठीक है, जो नैपसेक स्प्रेयर है ये बहुत ही जनरली हम यूज़ करते हैं, जो हमारे फार्मर यूज़ करते हैं. ठीक है, तो अबाउट 15 लीटर का ये जो टैंक होता है उनका. ठीक है, जिसको वो अपने शोल्डर में उठा के पंप आउट करते हैं, प्रेशर देते हैं और फिर उसके बाद वो ड्रॉपलेट्स में चेंज होता है सक्शन से और फिर वो स्प्रे होता है हमारे फील्ड पे. Okay, so the knowledge of the various part of the sprayer and their functions is necessary for efficient operation, maintenance and repair.
Then major parts of the knapsack sprayer are given below. So first one is tank container, ठीक है, जो एक टैंक होता है जिसको वो अपने शोल्डर में होल्ड आउट करते हैं, जिसकी कैपेसिटी अबाउट 15 लीटर होती है, 15 to 16 लीटर वेरी करता है कंपनी टू कंपनी. ओके. देन प्रेशर पंप होता है उसमें, जिससे वो हैंड प्रेशर पंप होता है, जिससे वो एक हाथ से प्रेशर देता है, जिससे अंदर टंकी में प्रेशर क्रिएट होता है सक्शन पंप की वजह से. एंड देन जो एक साइड जो होता है नोजल होता है, जो फव्वारे के रूप में, स्प्रिंकल के रूप में, ठीक है, वो जो हर्बिसाइड्स है वो ड्रॉपलेट्स में, वो बहुत मिनी ड्रॉपलेट्स में फॉर्म होके हमारे फील्ड पे अप्लाई करते हैं हम, ठीक है. देन डिस्चार्ज लाइन, डिलीवरी लाइन. सो थ्रो दिस लिक्विड्स कम आउट दिस स्प्रेयर विद फोर्स आफ्टर कन्वर्टिंग द मिस्ट फॉर्म या some small droplet we could say. It consists of the following parts. So first one is the delivery hoses. So flexible tubing or rubber or plastic was one end is attached to the tank container, ठीक है. तो एक ट्यूब रहता है प्लास्टिक का जो एक बैंड लाइक स्ट्रक्चर से वो पैक्ड होता है, ठीक है, जिससे हवा बाहर नहीं जाता, तो प्रेशर क्रिएट होता है और फिर वो जो फ्लेक्सिबल होता है काफ़ी, ठीक है, ऊपर नीचे आप उसे कर सकते हैं. तो उस टाइप का वो एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है टैंक में और फिर वो सक्शन करता है, ठीक है. देन लेंस. तो लेंस, व्हाट इज लेंस? सो अ मेटल ट्यूब अटैच टू द अदर एंड ऑफ द हॉस एंड अप टू नोजल. नोजल में एक लेंस टाइप का लगा होता है, ठीक है, जो नोजल होता है जहाँ से हर्बिसाइड निकलता है वहाँ पे एक लेंस टाइप का स्ट्रक्चर लगा होता है. देन कट ऑफ एंड शट ऑफ. तो जनरली फिक्स एट द जंक्शन ऑफ द डिलीवरी होसेस एंड लेंस टू कट ऑफ द फ्लो ऑफ द लिक्विड व्हेन स्प्रेइंग इज सस्पेंडेड. ओके. सो दीज आर द वेरी बेसिक पार्ट्स ऑफ द डिलीवरी होसेस. एंड देन नोजल. व्हाट इज नोजल? तो जो जहाँ से हर्बिसाइड निकलता है वो नोजल होते हैं, जो 3 प्रकार का होता है. तो फ्लैट पेन होता है, देन फ्लर्ट जेट होता है, देन कोन होता है, ठीक है. तो फ्लैट पेन होता है, उसका भी एक अलग स्ट्रक्चर होता है. फ्लर्ट जेट होता है, ठीक है, एंड देन कोन. तो ये हम अपने नेक्स्ट प्रैक्टिकल के लेक्चर में हम इमेजेस देख लेंगे कि ये जो नैपसैक स्प्रेयर रहता है बेसिकली कैसा होता है, ठीक है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बेसिकली हमारे एग्रीकल्चर में नैपसैक स्प्रेयर ही यूज़ करते हैं जो फार्मर्स होते हैं, ठीक है. देन हैंडल. इट इज़ द मूव. वो हैंडल होता है, उसे हैंडल कहते हैं. दिस इज वेरी सिंपल इज दैट. एंड द एग्रीटेटर्स. सो द एक्टिव मटेरियल इज एन स्प्रे फ्लूइड आर नॉट ऑलवेज a solution but are held in suspension from and consequently the material should be kept well mixed in other to secure and even distribution of the herbicides. Then filter strainers, जो filter करता है. Then washes and the gasket लगे होते हैं. तो these are the very basic term, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा कि. and then shoulder straps. अब शोल्डर में लटकाने के लिए एक स्ट्रैपिंग लगी होती है, जैसे हम बैग लटकाते हैं अपने शोल्डर पे. सो सेम एज द. so these are very basic terms and you all know that. okay. then types of the sprayer, ठीक है, and spray nozzle and spray pattern, ठीक है. तो spray technology is before starting the spraying operation check the nozzle by spraying plain water on a puka floor. ओके. सो ये सारी चीज़ें जो है स्प्रे टेक्नोलॉजी हमें कैसे करना रहता है, स्प्रे को चेकआउट कैसे करना है कि वो सही चल रहा है या नहीं, सही काम चल रहा नहीं, उसके कुछ पॉइंट्स हैं जो हम देख लेते हैं. So if weighting of the flour is not uniform, change the nozzle or nozzle tube, ठीक है. Then person who has done calibration should be deputed for spraying the field. Then start spraying for one corner to the field in the band and second band should be parallel to the first with slight overlapping, ठीक है, जिससे overlapping नहीं हो. तो एक कॉर्नर से आप मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको स्प्रे करते हुए चलना है. Then keep the nozzle at the height of 50 centimeter from the ground and canopy level, ठीक है. तो नोजल को आपको ऊपर रखना है कैनोपी लेवल से, वेजिटेशन जहाँ तक है जितनी हाइट से उससे ऊपर रखना है, टच नहीं कराना है, isn't it? नहीं तो वो सॉइल में चला जाएगा, प्लांट में कम पड़ेगा. ओके. सो spray should be as uniform as possible. The leftover solution should not be resprayed but must be discharged on a barren land, ठीक है. जो भी बच जाता है उसको ऐसा नहीं कि हम फिर दूसरे दिन उसको स्प्रे कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो फिर एक दिन के बाद सोल्यूशन जो है टॉक्सिसिटी जो होता है वो उसका एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, ठीक है. एडवर्स हम कह सकते हैं कि अपोजिट रेडॉक्स रिएक्शन होता है उसमें, ठीक है, अपोजिट रिएक्शन होता है, उस पर्टिकुलर सोल्यूशन को ऑक्सीडेशन हो जाता है जिससे एक अलग मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाता है. तो हमारे प्लांट को अलग मतलब एडवर्स इफेक्ट करने का चांसेस बढ़ जाता है. तो उस कंडीशन पे ऐसा नहीं करना चाहिए, उसे डिस्चार्ज कर देना चाहिए, फेंक देना चाहिए, पर ऐसा भी नहीं कि कहीं भी फेंक दें. बैरन लैंड है,
ठीक है, वो ऐसे जगह पे उसे डिस्चार्ज करना चाहिए. सो डू नॉट मूव नोजल एंड फ्रो, ऑलवेज स्प्रे एट नाइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द wind and do not spray along or across the direction of the wind. So this is very simple point. Then postpone spray if wind velocity is high, we all know that. Then wear full sleeve shirt. These are the very basic precaution for the spraying pattern, spraying technology. Then how to prepare spray fluid. So thoroughly mix the calculated dose of the herbicide in small quantity of water and then make the volume of the solution. So spray fluid, which is a spray fluid up to calibrate amount in a big container. ठीक है, तो वो ऑब्वियस है कि हम पहले कैलकुलेशन करेंगे कि कितना हमारा फील्ड एरिया है और कितने हर्बिसाइड की मात्रा हमें चाहिए. सो वो हम करेंगे, वैसे उसके अकॉर्डिंगली हम अपने सोल्यूशन को वाटर क्वांटिटी में मिक्स करके रेडी करेंगे. ओके, सो यूज़ हैंड ग्लव्स. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यूज़ हैंड ग्लव्स एंड गैस मास्क वाइल प्रिपेयरिंग द सोल्यूशन एट द टाइम ऑफ द एप्लीकेशन इन द फील्ड. तो हैंड ग्लव्स, मास्क और जो ये आई गॉगल्स, ये सारी चीज़ें बेसिक है जो आपको हैंडलिंग के टाइम, प्रिपरेशन के टाइम, स्प्रेइंग के टाइम, हर टाइम आपको ये जो थिंग है वो आपको यूज़ करने हैं. देन स्टार्ट द स्प्रे फ्लूइड थ्रू बिफोर इट्स फीलिंग. ठीक है, तो ये जो बेसिक प्रिंसिपल था ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि क्या है हर्बिसाइड का प्रिंसिपल. एंड मैंने एक बार रीड आउट भी कर दिया, सारे लाइंस मैंने एक बार पढ़ दिए ताकि आपको राइटिंग इशू ना हो. आप वीडियो के थ्रू इसे समझ सकते हैं. मैं कल इसका PDF फॉर्म भी अपलोड कर दूंगी. ओके, सो अल्टरनेटिवली स्टॉक सोल्यूशन नंबर ऑफ द लीटर इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ द स्प्रे पंप रिक्वायर्ड फॉर स्प्रेइंग 1 hectare can be prepared in a small container. Okay, so pour 1 liter of the stock solution in the pump and make the volume up to 15 liter body adding water. ठीक है, तो वाटर के हिसाब से आपको 1 लीटर स्टॉक सोल्यूशन का 15 लीटर वाटर में वॉल्यूम बनाना है कि आपको किसके अकॉर्डिंग फॉर्मुलेशन तैयार करना है. देन पुट 1 or 2 लीटर ऑफ द वाटर बिफोर पॉरिंग स्टॉक सोल्यूशन इन द कंटेनर. ठीक है, तो पहले ही आपके जो कंटेनर पे वाटर आपको डाले होने चाहिए. ऐसे नहीं कि आप पहले हर्बिसाइड डाल दिए, पहले आप वाटर डालिए, उसमें पहले मिक्सअप करिए, उसके बाद आपको जितना रिकमेंडेशन है वाटर का या वाटर लीटर का, जिस हिसाब से आप अपना सोल्यूशन रेडी कर रहे हैं, फिर वो आप उसमें मिक्सअप कीजिए. ठीक है, so these are the all about the techniques of the spraying technology and these are the very basic method of the herbicide application and some spraying equipment. ठीक है, so हमने इसमें spraying equipment देखा and most important spraying equipment is knapsack sprayer. ठीक है, जो जनरली हमारे एग्रीकल्चर में फार्मर्स यूज़ करते हैं. ठीक है, क्योंकि ये चीप कॉस्ट के अवेलेबल है मार्केट पे और वेरी इजी टू ऑपरेट है. ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही एंड थैंक यू वेरी मच. सो टिल देन बी सेफ, टेक केयर, थैंक यू.